Hello everyone, welcome back to my channel that is Ikjot Nursing Academy. Today we are going to discuss one very important topic of psychiatric nursing, and we can say it is a base of psychiatric nursing, that is principles of mental health nursing or psychiatric nursing. This is very important for all GNM BSc students because it always come in exam. So that's why on demand I am preparing video of principles of mental health nursing. So we will start now. So journal principles of mental health nursing. What is the base of principles of mental health nursing? That is, these are journal in nature and it is based on the guidelines of emotional care. Basically it is based on emotional part. So as we are planning care in medical surgical nursing or pediatric nursing, what we are doing the assessment, we are doing the diagnosis, we are planning the intervention, then we will implement the intervention, and at the last we will evaluate nursing care. The nursing care is same steps in psychiatric nursing, but there are some different principles of psychiatric nursing because we are dealing in psychiatric or mental health nursing for a patients which are emotionally weak, which are having emotional problems or emotional disturbance. So the some principles are there. Overall there are 12 principles. I am repeating, overall we are having 12 principles which we will discuss now. So please see the video till the end so you can able to understand what are these principles. First principle, and which is very important principle, that is patient is accepted exactly as he or she is. Means whatever the patient is showing our emotions to us while they are admitted in the psychiatric ward or in the setting, any setting which is related, he is or she is facing the problem which is emotionally related problems. So we have to accept the patient. What is the meaning of acceptance? So what is the meaning of acceptance exactly? That is, acceptance convey the feeling of being loved. So whatever the love we want to show to our patient, that we have to show it by accepting the patient. If he is showing us even the violent behavior or the behavior which is not acceptable, we can't refuse the patient that we will not treat you. So we have to mold the patient accordingly. So acceptance means being non-judgmental. What is the meaning of judgment? Judgment means we are making the judgment by seeing anybody. So we can't pass the judgment in psychiatric patients. Maybe on particular time he or she is showing some different symptoms according to their disorder. But after some time they will just show the opposite reactions. So we have to wait. We can't pass any judgment. We have to treat the patient accordingly what he or she is showing to us, the symptoms they are showing to us. That is, acceptance does not mean complete permissiveness but setting of positive behavior to convey him to respect as the individual human being. Means we have to show that patient that you are accepted by us, but we can't allow the patient to do whatever they want to do. Means maybe the patient are telling us that he want to do something which is not acceptable. पेशेंट हो सकता है आपको कहे कि हाँ मैं तो आपको मारना चाहता हूँ, तो आप उसको अलाउ नहीं कर सकते, या मैं वार्ड से बाहर जाना चाहता हूँ, तो आपको उसकी उतनी ही चीज़ों के लिए अलाउ करना है जो आप कर सकते हो, जितने आप उसको परमिशंस दे सकते हो. बट आपको पेशेंट को एक्सेप्टेंस शो करनी है कि हाँ वी आर केयरिंग फॉर यू, वी वांट टू ट्रीट यू, सो एज अ ह्यूमन बीइंग यू नीड टू बी रिस्पेक्टेड. सो आपको उस पेशेंट को उतनी रिस्पेक्ट शो करनी है. आपको उसको ये शो नहीं करना कि हाँ तुम रिजेक्टेड हो, तुम यहाँ वायलेंट बिहेवियर शो कर रहे हो तो हम तो तुम्हें ट्रीट ही नहीं करेंगे या तुम्हें एकदम से बांध के रख देंगे.
We can't do these kinds of things. This is the main basic first principle, that we have to accept the patient, we have to plan care for the patient. Whatever they are showing to their symptoms, we have to accept that symptoms. In this, we are having some sub points also in first principle. First thing is being non-judgmental and non-primitive. As we already discussed, that we should not be judgmental. We can't show or pass the judgment that by seeing the patient. We have to wait. We have to observe the particular behavior of the patient. According to that particular behavior, we have to react. Like we can study also that the patient behavior is non-judged as right or wrong or bad. We have to follow their condition. Next is, patient is not punished for his undesirable behavior. There is very common example of undesirable behavior in the psychiatric wards. That is, sometimes patients revert back to us as a nursing staff when we are working, or as a student nurses we are working. Sometimes they slap us. So we can't revert back to the patient. We have to accept it, and we have, because of their mental condition, they show us these kinds of behavior. So we have to, maybe we have to restrain the patient for some time. We have to do our management, but we can't beat the patient against कि उसने हमें मारा है तो हम भी उससे मारेंगे ही अब. No, we can't do this thing. Because of their mental condition, they did that thing, na. So we have to show concern also. All directed and indirected methods of punishment should be avoided. We can't give the punishments to the patients also. The nurse who show acceptance does not reject the patient even he behaves opposite. Controversies. We can't reject the patient. We have to take care of the patient. In which condition he or she is, we have to provide care as a mental health nurse. Second point is being sincerely interested in the patient. This is the second sub point of first principle only. That is, how we will show that we are sincerely interested in you. Patient mental condition is not normal. They are not normal behavior. They are affected with any of the mental disorder, either with depression, either with mania or schizophrenia. So we have, how we will show that we are sincerely interested? There are some points, like we show that studying patient behavior. Whenever you will talk to the patient, talk properly to the patient, observe their behavior, and accordingly you can give the choices to the patient. Allow him to make his or her own choices or decisions as far as possible. As far as this is possible, you can allow the patient that he or she will do the activities. For example, the routine activities, like what he wants to eat. So you can allow, if there is an in the our campus area there is an any canteen or any facility from where the patient relatives can buy things for him or her, you can allow the patients to eat that things, whatever they want to eat, or anything which is which is acceptable. Being aware of his likes and dislikes. If the patient is particularly dislikes something, so you can't show that thing to the patient. If the patient is not liking any environment, for example, he doesn't like to play football, or they doesn't like to play outdoor games, so you can induce the patient's energy in doing another things. Like you, if the patient is interested in making drawings, so you can allow the patient to do drawing rather than playing. So whatever they want, whatever their likes and dislikes, you have to follow the same. Taking time and energy to listen what he or she is saying to you. Please spend time. This is one of the very important thing when we are caring for a psychiatric patients. So you have to show a concern to the patient by listening actively.
avoiding sensitive subjects and issues, discussing with the patient. Like there are some issues sometimes, like there is one patient, for example, of depression. What is the basic reason behind depression? You got some information from the relatives. So but when you start talking with that patient, आप उस टॉपिक पे बात करना शुरू करते हो पेशेंट से, और पेशेंट एकदम से डिप्रेस हो जाता है या एकदम से इग्नोर करता है आपको, मीन्स दे डोंट वांट टू टॉक टू on that topic because he or she is not feeling much comfortable on that time. So you can skip on that time. You can't force the patient कि हाँ आप यही बात करोगे, मुझे तो अभी आपसे ये बात करनी है, तो इससे क्या होगा, पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाएगी. तो we can't do that thing. This is the second sub point, that is being sincerely interested in the patient. These are some points how we can show sincerity to the patient. Third point is recognizing and reflecting on patients which patient may express feelings, which patients may express, means we have to recognize, maybe he or she is giving some clues, so we have to be active listeners and we can recognize what they want to say. If we are able to recognize, we have to reflect also. We can show different gestures, like if the patient is saying some story which is related to his disorder, so you can nod your head in between, you can show any gestures, okay, some examples, so they can say कि हाँ पेशेंट को फील हो कि हाँ आप उसको सुन रहे हो, आप उसकी चीज़ों को समझ रहे हो. ये चीज़ें हमें उसको भी दिखानी है. ये नहीं कि पेशेंट तो बात कर रहा है और हम तो कहीं और ही देख रहे हैं, तो पेशेंट को क्या लगेगा कि मेरे में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, मेरे को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे. सो वी हैव टू शो दैट पेशेंट दैट ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अस. नेक्स्ट इज टॉकिंग विद अ पर्पस. Whenever we are talking with the patients of psychiatric patients, what they will do, they will just talk many stories which are sometimes not related for us for their treatment plan. So we have to mold the patient to make them understand that what we want to talk to the patient for their treatment, they can talk on that points. Nursing conversation with the patient must resolve around his needs. उसको क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, वांट्स एंड इंटरेस्ट. उसकी ये नहीं कि उसकी हम फालतू की स्टोरीज जो हैं वो सुनते जा रहे हैं. हमें अपना कंसर्न फोकस करना है कि हाँ हम उसकी नर्सिंग केयर कैसे बेटर कर सकते हैं, हमें उन चीज़ों को डिस्कस करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज लिसनिंग. आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी नीड टू बी अ एक्टिव लिसनर, गुड लिसनर, एंड वी हैव टू स्पेंड मोर time and energy with the patient in listening. So when we listen to the patient, actually they will feel that we are showing sympathetic way also. patient को क्या लगता है कि हाँ genuinely ये मेरे में interested है nursing staff, ये मुझसे बात कर रहा है. तो this is the very important principle actually. Next is permitting patient to express strong held feelings. पेशेंट को अलाउ करना है कि जो भी उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो रही हैं, लाइक स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग्स हैं उसकी, तो वो एक्सप्रेस करे. स्ट्रॉन्ग इमोशंस बोटिंग अप आर पोटेंशियली इम्पल्सिव एंड डेंजरस. हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा सुसाइडल आइडिएशंस आ रही हों, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हों, स्ट्रॉन्ग इमोशनली वो वीक है, वो अगर बात ही नहीं करेगा उस चीज़ के लिए आपके साथ, तो आपको कैसे क्लू मिलेगा. सो जो भी वो बात कर रहा है पेशेंट आपसे, अलाउ करो उसे करने के लिए, हमें उसको अलाउ करना है और उससे उसको मोटिवेट करना है कि हाँ वो अपनी जितनी फीलिंग्स हैं वो वर्बली एक्सप्रेस कर दे, रेदर देन दे विल डू सम एक्शन फॉर दैट, कि वो उन चीज़ों के लिए कुछ एक्शन करे. ऐसा नहीं करना है, उसको अलाउ करना है कि हाँ वो जो भी चीज़ है वो अपनी एक्सप्रेस करे, जो भी उसके इमोशंस हैं. So this is all about, till now we discussed first principle of psychiatric nursing. That principle is actually patient is accepted exactly as he or she is. In this we are having some sub points to show acceptance. कि acceptance हम कैसे show करेंगे.
तो एक्सेप्टेंस शो करने के लिए हमारे पास ये सब पॉइंट्स हैं, बीइंग नॉन जजमेंटल, नॉन प्रिमिटिव, being sincerely interested in the patient, recognizing and reflecting on patient's feeling, talking with a purpose, listening and permitting the patient to express their strong held feelings. So now we are moving to second principle, that is use self understanding as a therapeutic tool. Now what is self understanding? Self understanding means our own understanding, नर्सेस अंडरस्टैंडिंग, हम अपने आप को कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. सो लाइक साइकेट्रिक नर्सेस शुड हैव अ रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट एंड शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज वन ओन्स फीलिंग. हम अपनी फीलिंग, हम अपनी स्ट्रेंथ, लिमिटेशन, अपनी वीकनेस हमें पता होनी चाहिए जब हम साइकेट्रिक पेशेंट्स के पास जा रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एज अ साइकेट्रिक नर्स आई एम वर्किंग इन अ वार्ड, सो मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए जब भी आप पेशेंट से बात कर रहे हो. लाइक ऐसा, आई एम अ फीमेल, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड की नहीं हूँ, थिन हूँ, तो मैं जो है बहुत हैवी पेशेंट है जो साइकेट्रिक का और जो वायलेंट है, उसका 100 kg अराउंड वेट है, तो अगर मैं उसको कंट्रोल करने जा रही हूँ अकेले तो मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. तो दैट आई नो, दैट इज माई लिमिटेशन. इफ आई वॉन्ट टू कंट्रोल दैट पेशेंट वायलेंस, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, आइदर अटेंडेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, आइदर मैं सेकेंड नर्सिंग स्टाफ अपने कोलीग्स की हेल्प लूंगी. तो मुझे अपनी जो चीज़ें हैं, अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ, मे बी मुझे नॉलेज बहुत है, मैं साइकेट्रिक की स्पेशलिटी से हूँ, तो I can able to talk to the patient, I can show express my feelings, I am able to understand the patient's feeling, but हाँ, मैं violent patient को अकेले handle नहीं कर सकती. तो that is I have to know, that is use self understanding as a therapeutic tool. means जब भी हम अपने patient के पास जा रहे हैं, हमें अपनी strength weakness को देख के जाना है और उसको वैसे ही use करना है. यूज करना मीन्स अगर हमें लगता है कि हम इस पॉइंट पे वीक हैं तो हम किसी और की हेल्प ले लेंगे. बिकॉज इफ वी आर नॉट डूइंग दैट थिंग, इट विल बी हार्मफुल फॉर द पेशेंट ऑल्सो एंड फॉर द अस ऑल्सो. हो सकता है मैं अकेली जाके वायलेंट पेशेंट कंट्रोल करने की कोशिश करूं और वो मुझे ही मार दे. सो वी हैव टू यूज दिस सेकेंड प्रिंसिपल वेन एवर वी आर डीलिंग विद द पेशेंट. Now we are moving to the third principle, that is consistency is used to contribute to the patient security. That is also very important. Consistency means we have to consistent in the attitude of staff, ward routine, in defining and limiting limitations based on the patient. Consistency means equality. हमारे पास जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, हमें उनको कैसे डील करना है. एटीट्यूड जो है स्टाफ का एक जैसा होना चाहिए हमारे वार्ड में. रूटीन, वार्ड रूटीन है, लाइक अगर 8 AM की प्रेयर की रूटीन है तो वो डेली 8 AM प्रेयर ही होनी है. अदरवाइज इट विल मेक कन्फ्लिक्ट इन द पेशेंट्स माइंड कि हाँ, आज तो 8 बजे प्रेयर हुई थी, नेक्स्ट 8 o'clock जो है वो ब्रेकफास्ट मिल गया, नेक्स्ट डे 8 o'clock मेडिसिन मिल गई, तो दे विल नॉट एबल टू एडजस्ट. सो रूटीन्स, attitude of the staff and limitations. Limitations means maybe we are not allowing the patient to go outside the ward. That should be consistent for every day. एक दिन तो उसको अलाउ कर दिया, नेक्स्ट डे हमने मना कर दिया, तो वो क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो जाएगी. हाँ, ये तो मेरे से कोई कंसर्न ही नहीं है, वो अपने आप को फील ही नहीं कर पाएगा अच्छे से. सो दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक प्रिंसिपल्स. फोर्थ इज reassurance should be given in a suitable and acceptable manner. Means whenever we are giving reassurance means हम reassure कर रहे हैं, उसको console कर रहे हैं. Nurse need to understand, हमें understand करने की जरूरत क्या है, and analyze the situation as how it appears to the patient. जब भी हम पेशेंट को रीएश्योरेंस दे रहे हैं, रीएश्योरेंस देना मीन्स हाँ, उसको समझाना कि हाँ, आप ठीक हो जाओगे, कोई ऐसा नहीं है कि आप इससे ठीक ही नहीं हो सकते, है ना, कुछ भी आप घर चले जाओगे, कुछ भी रीएश्योरेंस देना. सो दैट मीन्स एक्सेप्टेबल एंड सूटेबल मैनर मीन्स अपने आप नहीं देना. देयर इज वन
very common example of this principle I will tell you, that is साइकेट्रिक पेशेंट्स जो होते हैं वो अगर आप साइकेट्रिक वार्ड में हो, वो आपसे आके बार बार पूछते रहेंगे मुझे आज ही डिस्चार्ज कर दो, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, ठीक है। तो अभी उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि उनको घर भेज दिया जाए, मे बी इट विल बी रिस्की फॉर द पेशेंट और अदर्स, हो सकता है वो घर जाके वायलेंट हो जाए, मे बी उनकी कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है। तो आपने क्या कह दिया, एक नर्स ने सिंपली हमने कह दिया हाँ अभी आप जाके दवाई खा लो, थोड़ी देर 1 घंटा बैठो, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे। दैट इज फॉल्स रीअश्योरेंस। आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आपके पास कोई राइट्स नहीं है उसको डिस्चार्ज करने के। उससे क्या होगा, जब 1 आवर के बाद वो वापस आएगा या उसको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, उसकी कंडीशन और वर्स हो जाएगी। एक्सेप्टेबल्स क्या है, सूटेबल आपकी एग्जांपल क्या हो सकती है, आप उसको समझाओ। अगर आप रूटीन फॉलो करोगे डॉक्टर से की और हम स्टाफ की जो है अच्छे से आप कोऑपरेट करके अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट करोगे, आपकी कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आप घर चले जाओगे। दैट इज सूटेबल मैनर। पर आपने उसको गलत कमांड कर दिया तो दैट इज वो पेशेंट की कंडीशन को खराब कर देगा। तो हमें हमेशा सूटेबल मैनर में, एक्सेप्टेबल मैनर में रीअश्योरेंस देना है, उसको फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देना है कि हाँ हाँ तुम तो आज ही ठीक हो जाओगे, नहीं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द 5th प्रिंसिपल, दैट इज पेशेंट बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय द रैशनल इंटरप्रिटेशन। मीन्स हमने पेशेंट को जो भी समझाना है, जो भी उसके अंदर चेंज लाना है उसके बिहेवियर के अंदर, वो हम कैसे लाएंगे, उसके इमोशंस को ठीक करके, उसके इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ, नॉट बाय द रैशनल इंटरप्रिटेशन। बिकॉज पेशेंट्स जो हैं वो रैशनल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। मेजर फोकस इन साइकेट्री इज ऑन फीलिंग्स एंड नॉट ऑन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। एडवाइजिंग ऑन or rationalizing with the patient is not effective in changing their behavior. They will not change their behavior. अगर हम उन्हें कहें कि नहीं अगर तुम ये काम करोगे तो तुम नेक्स्ट डे तुम ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करेंगे। उनको क्या चाहिए, उनको जब इमोशनली लगेगा अच्छा हाँ मुझे आज खाना खाना चाहिए, उनको इमोशनली लगेगा हाँ मैं वीक हो रहा हूँ, मुझे खाना खाना चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी होगी खाना खाने के, तभी वो खाना खाएंगे। सो दैट मीन्स कि हमें पेशेंट के इमोशनल पार्ट पे वर्क करना है, इमोशनली वो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, रेदर देन उसको रैशनल्स दे दे के ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। दैट इज द 5th प्रिंसिपल। नेक्स्ट 6th प्रिंसिपल इज अननेसेसरी इंक्रीज इन द पेशेंट एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। फोर्स लग रही है पिक्चर में, मीन्स पेशेंट की जो अनएक्सपेक्टेड एंजाइटी है, अननेसेसरी एंजाइटी है, उसको हमें डिक्रीज करना है, ऐसे प्रेशर देके इंक्रीज नहीं करना है। तो वो कैसे हो सकता है, पेशेंट की एंजाइटी कैसे डिक्रीज होगी, मींस अननेसेसरी एंजाइटी कैसे हो सकती है। अगर हम उसके पास खुद ही एंजाइटी के साथ गए, एज अ नर्स मैं पेशेंट के पास जा रही हूँ पर मैं तो खुद ही बहुत डरी हुई हूँ, तो पेशेंट क्या फील करेगा, वो तो और एंशियस हो जाएगा, ये तो खुद ही इतनी डरी हुई स्टाफ है, मुझे क्या ट्रीट करेगी, है ना, मैं उससे बात ही नहीं कर पा रही हूँ कॉन्फिडेंस से। सो दैट विल इफेक्ट द पेशेंट ऑल्सो। सो उसके अंदर खुद और एंजाइटी आ जाएगी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल शोइंग नर्सेज ओन एंजाइटी, हमें अपनी एंजाइटी नहीं शो करनी है, इवन वी आर इन द एंजाइटी ऑल्सो। शोइंग अटेंशन टू द पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ अ पेशेंट, हमें पता है पेशेंट का जो है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट डिप्रेस्ड है किसी प्रॉब्लम से, तो हमें उसी प्रॉब्लम को हर टाइम फोकस नहीं करना है उससे बात करते हुए। उससे क्या होगा, वो ऑलरेडी उस चीज से डिप्रेस्ड है, हम हर टाइम वही बात करेंगे, हर कन्वर्सेशन में वही चीज करते ही रहेंगे। अगर दिन में हमने फॉर एग्जांपल आपने अपने शिफ्ट में उसे 5 टाइम्स टॉक किया, 5 टाइम आपने उसी पे बात करनी स्टार्ट कर दी, तो पेशेंट विल फील कि हाँ वो उस चीज से कैसे बाहर आएगा, उसके डिफेक्ट के साथ ही आप हमेशा डील कर रहे हो, उसको कहीं और उसके माइंड को मोल्ड करोगे, थोड़ा सा चेंजेस लाओगे, देन ओनली ही विल एबल टू रिकवर फ्रॉम द सिचुएशन। मेकिंग द पेशेंट टू द फेस रिपीटेड फेलियर्स, कुछ चीज़ों को वो रिपीटेडली फेल हो रहा है तो उसी को वही दिखाते रहो कि हाँ तुम तो कर ही नहीं सकते थे, ये तो ऐसा ही होगा, तुम्हारा तो मेंटल स्टेज ही ऐसा है, तो उससे क्या होगा, उसको कोई विल पावर ही नहीं मिलेगी ठीक होने के लिए। प्लेसिंग डिमांड ऑन द पेशेंट विच ही कैंट मीट,
according to the patient IQ level or patient mental condition we can give the task to the patient. अगर आपने कुछ ऐसा टास्क दे दिया जो वो कंप्लीट ही नहीं कर सकता, लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट की इतनी कंडीशन ही नहीं है कि वो पजल सॉल्व कर सके, आपने उसको सिंपल गेम क्या दी, पजल दे दी, आपने तो अपनी तरफ से उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए पजल दे दी, पर उसकी इतनी मेंटल एबिलिटी नहीं है, तो जब वो उस चीज को मीट नहीं कर पाएगा तो वो और डिप्रेस हो जाएगा। आप उसको कुछ और गेम दे सकते थे, आप उसको लूडो ऑफर कर सकते थे कि प्ले लूडो और प्ले एनीथिंग एल्स विच विल नॉट बी, जो वो कर पाता। डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन ऑन द साइकोटिक आइडियाज, आप उसको डायरेक्टली आप उसको मना नहीं कर सकते कि हाँ तुम तो ऐसा सोचते हो, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सेवंथ प्रिंसिपल। सेवंथ प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। मीन्स हमें उनके ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करनी है। हम जब भी पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट के पास उसकी केयर करने जा रहे हैं, वी हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट वेरी क्लोजली, हमें बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व करना है। लाइक इट इज द एबिलिटी टू इवेल्युएट एग्जैक्टली व्हाट द पेशेंट वांट टू से। कुछ चीजें कई बार पेशेंट हमें से बोलते नहीं है, साइकेट्रिक पेशेंट्स, लाइक मेडिकल सर्जिकल पेशेंट होगा, मेडिकल का पेशेंट होगा, वो हमें बोलेगा कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, आई एम हैविंग स्टमक एक, मेरा पेन रिड्यूस नहीं हो रहा इवन आफ्टर मेडिकेशन ऑल्सो, तो आप उसको उस तरह से ट्रीटमेंट दोगे। पर ये पेशेंट्स जो हैं वो आपको ऐसे नहीं बताते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को इतने इजीली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को इतनी इजीली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो हमें जजमेंट्स पास नहीं करनी है, बट हमें उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, सेवंथ प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट्स बिहेवियर। जो वो हमें बिहेवियर शो कर रहा है उसे हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है और ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट एट प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल थिंग, मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। Nurse patient relationship means NPR, it's a short form. This is nurse patient relationship. This focus the personal emotions and needs of the patients and not on the needs of the particular thing. So this is the emotional care of the patient. When we are talking with the patient, we have to maintain our realistic nurse patient relationship. We have to talk about the emotional part of the patient, बट इट इज़ नॉट कि हमें अपना जो रिलेशनशिप है उसको फ्रेंडली रिलेशनशिप भी नहीं बनाना है, कोई और रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना है, हमें नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पे फोकस करना है। दैट इज वी आर केयरिंग फॉर दैट पेशेंट बिकॉज ही और शी इज इन अवर वार्ड एज अ साइकेट्रिक पेशेंट। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, वेरी कॉमन एग्जाम्पल है, वो कहते हैं आप तो मेरी सिस्टर जैसी हो, आप तो मेरे ब्रदर हो। सो आपको उसको कहना है मैं यहाँ पे आपकी सिस्टर हूँ जो आपकी केयर कर रही हूँ वाइल यू आर इन माई वार्ड। सो आप उसके साथ उसको पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं जाना है, आपको फोकस करना है पेशेंट केयर पे। नेक्स्ट इज अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। जहां तक आप कर सकते हो अपनी फिजिकल एंड वर्बल फोर्स आपको उसको यूज नहीं करना है। ऑल मेथड्स ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी अवॉइडेड। हम उसको पेशेंट को, साइकेट्रिक पेशेंट को रिस्टेन नहीं कर सकते अननेसेसरली, उसको कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते इवन दे आर नॉट डूइंग वेल। हम उसकी मेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उसे ट्रीट करना है और हमें उसको वर्बल फोर्स भी ज़्यादा यूज नहीं करनी है, बिल्कुल उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। हाँ, इफ द पेशेंट इज डूइंग समथिंग हमें उसको कंट्रोल तो करना है, बट बहुत ज़्यादा वर्बल फोर्स लगा के या फिजिकल फोर्स लगा के नहीं। जहाँ तक हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ हम मत यूज़ करें, वहाँ तक हमें यूज़ नहीं करना है। जहाँ हमें लगता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, पेशेंट को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, दो लोग नहीं पकड़ेंगे, पेशेंट किसी को हार्म कर देगा या अपने आप को हार्म करने जा रहा है, सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा है, उसके हाथ में नाइफ है या कोई भी ऐसी चीज़, तो आप उसके लिए फोर्स यूज कर सकते हो। अदरवाइज जहां तक पॉसिबल है आप फोर्स यूज नहीं करोगे, एडिशनल एक्स्ट्रा फोर्स, बिकॉज इट विल इंक्रीज पेशेंट्स एंजाइटी। नेक्स्ट इज नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज अ पर्सन एंड नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। मीन्स हम जो नर्सिंग केयर प्लान करेंगे वो एक पर्टिकुलर पेशेंट की एक ही
केयर प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल इन मेडिकल सर्जिकल केसेस what is if there is an patient with a pain disorder or hypertension for example, so the nursing diagnosis will be almost similar. So but in these cases, in the case of psychiatric nursing, the nursing care plan would be different for the two same diagnostic patient. Means for example, there is one patient with the depression in our ward and there is next patient with the same diagnosis, that is depression, but maybe the cause of the depression would be different. For the first person, the cause would be the crisis, like financial crisis, sudden crisis. So their emotional stage is different, so we can treat, or they are showing the different symptoms also maybe. So we have to treat accordingly. Second patient, maybe the cause for the depression is love failure and they are showing the different symptoms, so we have to treat, or maybe they are showing something same also. So we have to conclude the nursing diagnosis, nursing care on one particular patient centered and not on the particular control of symptoms. We have to treat the cause, symptoms are automatically gone on that time. Symptoms अपने आप ही ठीक हो जाएंगे अगर हमने उसका इमोशनल पार्ट स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसका कॉज क्या था उसको फाइंड आउट किया. Next, 11th principle is all explanation of the procedures and other routines are given according to the patient's level of understanding. Psychiatric patients की mental ability के according उनकी level of understanding, maybe कुछ patients जो हैं वो बहुत अपने आप, उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत अच्छा है, उनकी एंजाइटी लेवल इतना नहीं है और दे विल बी, मतलब वो रिकवर हो चुके हैं काफ़ी हद तक, तो उनका स्टेबिलिटी लेवल कुछ और होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ और होगा, उसके हिसाब से हम उनको चीज़ें समझाएंगे. बट कुछ पेशेंट है जो अभी रिसेंटली उसको फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनी का अटैक आया है, उसकी मेंटल कंडीशन वैसी होगी, तो हमें जो भी रूटीन उसको वार्ड रूटीन समझानी है, कोई और चीज़ समझानी है, हम उसके अकॉर्डिंगली समझाएंगे. हम एक ही पैरामीटर्स पे नहीं चल सकते साइकेट्री में कि हाँ एक ही हमने रूटीन है, हमने अपने वार्ड में एक रूटीन बोल दी, हाँ वो सभी के लिए फॉलो है, बस बात खत्म. नहीं, हमें हर पेशेंट को उसकी हिसाब से, उसकी चीज़ जो मेंटल कंडीशन के हिसाब से जो रूटीन्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं कि हाँ आपके साथ ये प्रोसीजर होने वाला है, उसके हिसाब से हमें उनको समझानी है. Now we are moving to our last principle, that is many procedures are modified but basic principle remain unaltered. Means हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे साइकेट्री में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मोल्ड करते हैं हमारे हिसाब से जब हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल, उसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक उसका मेन प्रिंसिपल है, वो चेंज कभी नहीं होगा. Like in psychiatric patients, very like there is one example we can say कि पेशेंट है, उसको, हमारे पास दो पेशेंट्स हैं डिप्रेशन के या मेनिया के, हम उनके पास कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो हो सकता है एक को मुझे प्रोसीजर समझाना पड़ा, तो वो बहुत इजी उस चीज़ को समझ गया, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो है पार्ट मैंने आगे कंटिन्यू किया. पर नेक्स्ट जो है वो तो बिल्कुल मतलब पेशेंट जो है वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल मुझे सुन नहीं रहा, तो उसके साथ मुझे उस तरह से डील करना पड़ेगा. उसको मेंटल स्टेशन पे जाके उसका मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है, वो कैसे समझ सकता है, उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ. हाँ, अल्टीमेटली मुझे वही जो मेरा प्रोसीजर है वही करना है, पर मैं उसको उस लेवल पे ले जाके कि हाँ मैं वो प्रोसीजर कर सकूँ, तो मुझे करना है. That is, many procedures are modified but the basic principle remain unchanged. Unaltered means unchanged, वो चेंज नहीं होता कभी, हमें वो सेम केयर ही पेशेंट को देनी है. This is all about the principles of psychiatric nursing. Thank you so much. I hope this video will help you to understand the principles of psychiatric nursing, and if you are new to my channel, please like, share and subscribe my channel and help me to grow also,
and if you like this my video, or if you want any changes, so that also you can tell me, so I can able to help you. Thank you so much to all.